Hello everyone, welcome to my YouTube channel again. Today we're going to discuss about the NET-JRF syllabus. As we know, NET-JRF examination is conducted by National Testing Agency and there are two papers for qualifying NET-JRF. One is paper 1, which is your aptitude, and second paper is your domain subject. Here we're going to discuss about political science domain subject. So let us continue. If you have any doubt, you can ask me on my Telegram channel. You can join the link given in the description box. And for the discussion of other domain subjects, you can ask me on Telegram channel. I will continue this video in both Hindi and English language. That means bilingual language, because it would be easy for everyone to understand. So let's start. First of all, part 1. It consists of aptitude examination, which includes topics such as teaching aptitude, research aptitude, reading comprehension, communication, reasoning, which also includes maths of 10th level, logical reasoning, data interpretation, ICT, people and environment, higher education system related to governance, polity, and administration. To discuss each topic in details, you can follow my YouTube channel where all the explanation of political science domain subject will be provided. Moving towards the domain subject political science, इसमें 10 यूनिट हैं. There are 10 units, and number 1 unit is related to political theory, which includes concepts such as meaning, definitions and all. Then concepts related also with liberty, equality, justice, rights, democracy, power, citizenship, political traditionalism, then ecologism, multiculturalism, postmodernism, liberalism, conservatism, socialism, Marxism, and feminism. All the explanation will be provided in the YouTube channel. Please subscribe to get all the notifications and so that you cannot miss any of the update. Unit 2 consists of political thought, which includes Western and Roman philosophers from ancient, medieval, and modern era. यहाँ आप देख सकते हैं प्लेटो, अरिस्टोटल एंशियंट फिलोसफर्स हैं, मैकियावेली मिडाइवल, हॉब्स, लॉक, रूसो, कार्ल मार्क्स, ये सब मॉडर्न फिलोसफर्स हैं. इनके बारे में भी हमें पढ़ना है. रेस्ट कंटेम्प्रेरी फिलोसफर्स, साइंटिस्ट्स, ग्रामसी, हाना एरेंड, फ्रांस, माओ जेडोंग, जॉन रॉल्स, इनके बारे में भी हमें पढ़ना है. अब आते हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट की ओर. तो जैसे हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफर्स साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा, उनका जन्म कब हुआ, उनका बुक्स क्या है, उनका थ्योरी क्या है, उनका स्टेटमेंट क्या है, वैसे ही हमें इंडियन पॉलिटिकल फिलोसफर्स के बारे में भी पढ़ना है. धर्मशास्त्र, कौटिल्य, चाणक्य के द्वारा दिया हुआ अर्थशास्त्र, अग्नसूता, बरानी, सिंक्रेटिज्म, कबीर, ये सब, पंडिता रमाबाई, फेमिनिज्म, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, M.K. गांधी, श्री अरबिंदो घोष, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, V.D. सावरकर, M.N. रॉय, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, दीन दयाल उपाध्याय. इन सब के बारे में आपको मेरे YouTube चैनल पर कंटेंट मिल जाएगा. नेक्स्ट आते हैं हम यूनिट 4 में, कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस. इसमें आपको अप्रोचेस पढ़ना होगा, जैसे कि साइंटिफिक अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, नॉर्मेटिव अप्रोच, एम्पिरिकल अप्रोच. ये सारे अप्रोचेस भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर कंटेंट मिल जाएगा. colonialism and decolonization, nationalism, state theory, constitutions and constitutionalism, political regimes, democratization, structure of power, development and actor and processes. एक्टर यहाँ पे जो हमारे पॉलिसी मेकर्स है उन्हें बोला जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग को बोला जाता है, और प्रोसेस उनके द्वारा लाया गया पब्लिक पॉलिसीज़ उससे रिलेटेड होगा, उनके द्वारा लाया स्कीम्स. यूनिट 5, इसमें हम
इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ेंगे, अप्रोचेस क्या है इंटरनेशनल रिलेशंस का, किस किस के थ्रू हम इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ने का कोशिश करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, कन्फ्लिक्ट एंड पीस किन किन स्टेट्स के बीच है, ऐसे देखा जाए तो किन किन नेशंस के बीच है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में हम नेशन को भी स्टेट बोलते हैं। फिर यूनाइटेड नेशंस कब इस्टेब्लिश हुआ, कैसे आया, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस जैसे ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन भी आया, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस सच एज सार्क, आसियान एट्सेट्रा, कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस जैसे कि अभी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या चैलेंजेस चल रहा है जो डेमोक्रेसी से हट के है। इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, इसमें हम देखेंगे कि इंडिया का क्या रिलेशन है उसके नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, कैसा उन्होंने इंडिपेंडेंस से पहले, इंडिपेंडेंस के बाद और अभी के टाइम में सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, स्मार्ट पावर, किस तरह का पावर यूज़ कर रहे हैं, किस तरह का डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना रहे हैं, वेदर वो डायलॉग्स का यूज़ कर रहे हैं, किस चीज़ का यूज़ किए, पहले भी इसके बारे में डिस्कस होगा। उनका कंटिन्यूटी क्या है, चेंज क्या है इंडियन फॉरेन पॉलिसी में। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जवाहरलाल नेहरू इंडिपेंडेंस के टाइम में जब इंडिया और बाकी स्टेट्स डिसाइड किए थे कि वो कोई भी पावर ब्लॉक्स ज्वाइन नहीं करेंगे, यूएसए, यूएसएसआर, तो ये उससे रिलेटेड है। इंडियाज़ रिलेशंस विद मेजर पावर जैसे यूएस, रशिया, इसके साथ कैसा रिलेशंस रहा है, और मल्टीपोलर वर्ल्ड, ये सारा कुछ भी हम पढ़ेंगे। साथ साथ कंटेम्प्रेरी टाइम में क्या चैलेंजेस इंडिया फेस कर रही है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। मूविंग टुवर्ड्स यूनिट 8, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, तो यहाँ का इंडिया का स्टेट कैसा है, स्टेट वाइज इकोनॉमी कैसा है, डेवलपमेंट कैसा है, प्रोसेस कैसा है, सारे स्टेट्स का अलग अलग स्कीम्स होता है, उसका प्रोसेस क्या है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, जो भी पॉलिटिक्स मतलब रीजनलिज्म के बेसिस पे या कास्ट के बेसिस पे या रिलीजन के बेसिस पे होता है, उसको हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बोलते हैं। सोशल मूवमेंट स्टेट्स में कैसे चलाए गए, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स कैसे बनी, रीजनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, रीजनलिज्म जैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सबसे रिलेटेड। जेंडर पॉलिटिक्स इन इंडिया, जेंडर को लेकर के क्या पॉलिटिक्स होता है, मेल फीमेल, और अभी एलजीबीटीक्यू भी आ चुका है। आइडियोलॉजी एंड सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, हर पॉलिटिकल पार्टी जो वो चाहे वो स्टेट पार्टी हो या नेशनल पार्टी हो, उसका क्या क्राइटेरिया है बनने का, और उसका आइडियोलॉजी कैसा है, हिस्ट्री में क्या रहा क्या नहीं। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कैसे स्टार्ट हुआ, अभी कैसे चल रहा है, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट 9 जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। ये भी इजी चैप्टर है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है, मीनिंग, सिग्निफिकेंस, अप्रोचेस, डेफिनेशंस, ये सब हम पढ़ेंगे। थ्योरीज, कॉन्सेप्ट, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ेंगे। इंडिया का कंपेयर करेंगे हम दूसरे स्टेट से, उसके नेबरिंग स्टेट से, पावरफुल स्टेट से। थ्योरीज पढ़ेंगे हम, कन्फ्लिक्ट कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है, ये सारा कुछ हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पढ़ेंगे। यूनिट 10 में हम गवर्नेंस और उसका सारा पब्लिक पॉलिसी, डेवलपमेंट्स, ये सारा कुछ स्टडी करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन दबा लें ताकि जितना भी नोटिफिकेशंस आपको आए और जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम्स आए, आप उसको सॉल्व कर सकें मेरे साथ। थैंक यू।